Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Economics. In today's video, we are going to continue with the topic that is methods to track elasticity of demand. In my previous video, we have already done the percentage method, which is also called proportionate method. Now we are moving to total outlet method, which is also called total expenditure of consumer. Right. So with the help of consumer expenditure, we can also judge what type of elasticity we have in the market. Because sometimes what happen, like law of demand says, with increase in price, demand falls. That is but obvious relation of the consumer with the market structure. But what happen in reality, sometime when your demand is falling with rise in price, your expenditure may increase, your expenditure may decrease. It means somewhere you are not able to control your demand in terms of price. Like suppose in the market you are getting very less price, and automatically when you are not expecting that much lower of price in the market, you suddenly purchase a lot with that reduced price. But you are not calculating that while you are going to purchase the amount of a good on higher level with reduce in price, you are actually paying more. Your expenditure is more. So this is how our expenditure may change with the change in demand due to change in price. So this is what we are going to measure here. So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe it, and also press on bell icon. So here we'll start. Without wasting our more time, we'll move to the topic which is called total outlay method. It is also known as total expenditure method. Right? So here it is of price elasticity of demand method to measure elasticity of demand. In my previous video, we have understood the ratio of change in quantity to the change in price, according to which we have calculated. अब यहाँ क्या कह रहा है कि हम जब मार्केट में जाते हैं, जब हम खर्च करते हैं, तो actual the expenditure incurred, actual your budget expanded, actual your income in the pocket is released. तो वो income कितनी चली गई due to the change in price, that we are going to measure in terms of elasticity. So here we go. First of all, few introduction related to this. Developed by Professor Marshall. Yes, this theory was developed by the Professor Marshall. He was the great economist, and his contribution is drastically different in compared to other economists in economy theory, economy basis. सारी economy process में जितने भी हम books पढ़ते हैं, जितने भी हम economic issues पढ़ते हैं, कितने भी हम facts पढ़ते हैं, उनमें इनका contribution हमेशा दिखाई देता है. Right? Second is it indicates the direction of change in expenditure due to change in price. Right? ये क्या दिखा रहा है? It indicates the change in the direction of your expenditure. Means आप किस तरह से expenditure कर रहे हो due to the change in price. प्राइस बदलने से डिमांड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, डिपेंडिंग ऑन प्राइस. बट उसके साथ साथ आपकी इनकम कितनी जा रही है और कितनी बच रही है, दैट इज द डायरेक्शन विच वी आर टॉकिंग हियर अबाउट. राइट. Third point here says total expenditure is a product. Product means we all know that multiplication. So total expenditure is the product of price and quantity of demanded. Here it is symbolically presented. So whenever you are supposed to calculate total expenditure, means you are here to calculate the product of price into quantity. When you are calculating it, remember it. जब हमें percentage method apply करना है, like in 11th class, now we have only percentage method. These methods are not coming, but these methods are very helpful for higher classes. So those who are studying in higher classes, they can go through with this method. This is a very important part of microeconomics as well for the student, those who are in 11th and calculating by percentage method. What happened here? Like you are given the total expenditure sometimes. तो आपको उस total expenditure से price या quantity निकालनी पड़ेगी. Then only you can apply percentage method. That example I will show you how to calculate. अभी हम करेंगे इसके बाद. So now we are going for the fourth point here. It measures three types. इस type of मेथड से हमें जनरली 3 टाइप की इलास्टिसिटी मिलती है, जिसमें हमारी सबसे पहली है ईडी ग्रेटर देन 1, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक. क्या बोलते हैं इसको हम? इलास्टिक डिमांड. ईडी ग्रेटर देन 1. अब ईडी ग्रेटर देन 1 का रिलेशन क्या है यहाँ पे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो हियर वी गो. ईडी ग्रेटर देन 1 सेज विथ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. देखो, विथ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. Two direction, one is falling, another is increasing. Fall, increase, fall, increase, and it's vice versa. Vice versa से इसका उल्टा. Right? तो इसका उल्टा क्या हो गया? With rise in price, expenditure falls.
इसका मतलब ये दो वेरिएबल्स प्राइस और एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। किस में जा रहे हैं ये? नेगेटिव डायरेक्शन, इनवर्सली रिलेटेड है। हाउ दे आर रिलेटेड? इनवर्सली रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। व्हेन प्राइस फॉल्स एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस राइजेस एक्सपेंडिचर फॉल्स। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली मैंने बताया जैसी प्राइस फॉल होती है हमारा बिहेवियर एकदम से होता है कि मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ, स्पेशली लेडीज के साथ होता है ना, दैट इज अ फैक्ट। तो क्या होता है, प्राइस कम हुआ, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वो भी ले लिया, बट हम ये नहीं कैलकुलेट करते कि अल्टीमेटली हमारे पॉकेट से ही वो पैसा बाहर निकल गया, ज्यादा चला गया। तो क्या हुआ? फॉल इन प्राइस, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। सो दिस इज कॉल्ड ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड. Second type, unit elastic demand. Unit elastic says ED equals to 1, means with any change in price there is no change in expenditure. Expenditure remain constant. This is called rational thinking. This is called rational behavior of consumer. अगर आपकी प्राइस में कुछ भी फॉल या राइज हो रहा है, उसके रिलेशन में आपने क्वांटिटी बढ़ाई या घटाई, बट इतनी तरीके से बढ़ाई घटाई या इतने तरीके से अप एंड डाउन किया कि आपके एक्सपेंडिचर पे यानी आपके बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब जो आप प्लान करके चले थे कि मैं इतना ही खर्च करके आऊंगा इस गुड को खरीदने में, अगर मार्केट में प्राइस में कुछ भी वेरिएशन आया तो आपने फटाफट से उसको कैलकुलेट किया और क्वांटिटी को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। यानी आप लॉ ऑफ डिमांड तो फॉलो कर रहे हैं, प्राइस बढ़ी तो डिमांड डेफिनेटली फॉलो ही होगी, लेकिन आपने क्वांटिटी ऐसे सेट करी कि आपके एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं पड़ा। और इसी कारण इसकी डेफिनेशन बन जाती है विथ राइज और फॉल इन प्राइस नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। इसकी डिटेल आपको डेफिनेशन डेफिनेटली रेफरेंस बुक में मिल जाएगी, देयर यू कैन कंसल्ट। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग इट। तो इस तरह की इलास्टिसिटी को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट इज ईडी लेस देन 1. द थर्ड वन इज ED less than 1, which is also called inelastic demand. क्या बोलेंगे इसको हम? inelastic demand. जो हमने पढ़ा हुआ है, inelastic क्या कहता है? In terms of quantity and price क्या होता है? That you must be remember with higher change in price, lower change in demand, right? But here what is happening? यहाँ स्टोरी कुछ और हो गई है. With fall in price, total expenditure also falls. Look at here. Two variables are moving in same direction. यानी प्राइस भी फॉल हो रही है, एक्सपेंडिचर भी फॉल हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा हम कब बिहेव करते हैं? जब कोई गुड्स हमारी हैबिट में है, जब कोई गुड हमारे स्टेटस सिंबल में है, जब कोई गुड के हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें फैशन के साथ चलना है, तो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड इतनी ज्यादा फॉल हो जाती है कि एक्सपेंडिचर में भी इस फॉर्मेशन में आ सकता है कि फॉल हो जाए, राइट? तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है कि एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, तो हमें डायरेक्शन चेक करना है यहाँ पर। तो क्या डायरेक्शन आ रहे हैं? विथ फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स। इसका मतलब कि कंज्यूमर इतनी ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसका एक्सपेंडिचर बढ़े, उसका फॉल ही हो रहा है विथ फॉल इन प्राइस। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये? पॉजिटिव डायरेक्शन। और इट कैन बी सेड डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। विथ फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर फॉल, विथ राइज इन प्राइस एक्सपेंडिचर राइजेस। अब इसी पूरी स्टोरी को हमने इस टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। लेट्स सी द टेबल क्लियरली। फर्स्ट, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है इस पोजीशन पे। वी कैन सी जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर। दिस इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस थ्योरी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? अब देखो, इनिशियली हमारी प्राइस क्या है? 3, राइट? 3 है और क्वांटिटी डिमांडेड 8 है। जब प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड फॉल हुई। ये हमारा रिलेशन है, क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, राइट? तो जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुई, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट? जब इनिशियल प्राइस 3 थी तो हमारा खर्चा पूरा 24 रुपीज हो रहा था, दैट विल राइट इन रुपीज, राइट? फिर जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुई, हमारा डिमांड फॉल हुई, बट फिर भी हमारा खर्चा क्या है? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज। सो यू कैन सी विथ राइज इन प्राइस, अनदर पॉइंट पे जाए, 4 से 5 हुआ, यानी प्राइस 3 से 4, 4 से 5, प्राइस इज इंक्रीजिंग। व्हाट इज हैपनिंग? डिमांड इज डिक्रीजिंग, बट ऑन द सेम साइड expenditure is increasing. It means
ये पूरा स्टेट हमें दे रहा है ईडी लेस देन 1 अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन. व्हाट इज हैपनिंग विथ इंक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, विथ फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर फॉल्स. इसके रिवर्स देख लो, 5 से 4, 4 से 3 हो जाती है प्राइस, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड एक्सपेंडिचर फॉल हो जाता है. तो इसे हम बोलते हैं ईडी लेस देन 1 और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड. राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. टेकिंग अनदर कलर, हियर वी हैव, मैंने पोर्शन को बिल्कुल डायरेक्शन को चेंज करा हुआ है, मैंने ग्रीन कलर से इसको दिखाया पोजीशन को. ध्यान देखना कि जब प्राइस 4 से 5 हुई, राइट, जब प्राइस 5 है तो 5 पर हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड करी, 6, राइट, और 6 डिमांड करने से जो प्रोडक्ट निकल के आया वो आया 30 रुपीज, राइट. और जब प्राइस बढ़ी 6 हो गई तो प्राइस 5 थी, प्राइस 6 हो गई, 1 रुपया बढ़ गई, तो क्वांटिटी डिमांड डेफिनेटली फॉल हो गई. ये लॉ कहता है हमारा. तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ फॉल हो जाती है, फॉल हो गई, बट रिजल्ट क्या आया वापस 30. इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को देखूं, सो विथ राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स बट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज. किसका स्टेटमेंट है, यूनिटरी इलास्टिक. क्या कह रहा है, विथ राइज और फॉल इन प्राइस नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर. इसके रिवर्स देख लें, प्राइस जब 6 से 5 हो गई यानी फॉल हो गई, डिमांड बढ़ी लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रहा. तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू 1 और वी कॉल इट यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है, हियर इट इज. नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट ट्रैक. लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, जब प्राइस 6 से 7 हुई यानी प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिक्रीज, यही रिलेशनशिप चल रहा है. क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 28 रुपीज, यानी 30 से 20 रुपीज पर हम आ गए. राइट, उसके बाद फिर देखो प्राइस और इंक्रीज हुई, 8 रुपए तक गई, अब क्वांटिटी और फॉल हो गई, अब एक्सपेंडिचर डिक्रीज. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, विथ राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ रही है यहाँ पर, यू कैन सी विथ राइज इन प्राइस एक्सपेंडिचर फॉल्स. एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है. राइट, तो और इसी के उल्टा देख ले, विथ फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर राइजेस. सो स्टेटमेंट इज हियर इन दिस रिलेशनशिप. व्हाट डज इट इंडिकेटिंग, ईडी ग्रेटर देन 1 मीन्स विथ फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, विथ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स. यही हो रहा है, विथ इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स. सो दिस रेशियो शोज ईडी ग्रेटर देन 1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक. राइट, अब इसी को हमने डायग्राम में देखा है. डायग्राम फॉर्मेट में जाएं तो डायग्राम क्या शो कर रहा है, सेम चीज. OX पे हमने क्या दिखाया, एक्सपेंडिचर विच इज हाईएस्ट 30, लोएस्ट 24, तो हमने 5 के डिफरेंस पे यूनिट मेजरमेंट यहाँ शो कर दी है. फिर हमने प्राइस दिखाई है Y एक्सेस पर. राइट, Y एक्सेस पे प्राइसेस हैं जो 3 to 8 जा रही है हमारी, यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू दिस. सो हियर यू कैन सी विथ राइज इन प्राइस, जब हम यहां तक जा रहे हैं, विथ राइज इन प्राइस डिमांड ऑल्सो सॉरी एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये जो सेगमेंट है इसको हम बोल रहे हैं ईडी लेस देन 1. क्यों, क्योंकि डिमांड कर्व कैसा बन रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड. कैसा बना एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले कर्व, इसको हम बोलते हैं टोटल आउटले कर्व. कैसा बना, पॉजिटिवली स्लोप्ड. विथ इंक्रीज इन प्राइस कर्व इज पॉजिटिवली स्लोपिंग, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. राइट, फिर हम देखें विथ इंक्रीज इन प्राइस, दिस इज व्हाट, विथ इंक्रीज इन प्राइस दिस पोर्शन सेज इट इज कांस्टेंट. क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट. नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बिकम कांस्टेंट, फिक्स हो गया. फिर इसके ऊपर जाएं और प्राइस इंक्रीजेस और इंक्रीज हो रही है. प्राइस इंक्रीज होने के साथ अब क्या हो रहा है, देखो प्राइस इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है. राइट, सो एक्सपेंडिचर दिस पोर्शन सेज दैट एक्सपेंडिचर इज डिक्रीजिंग with increase in price. You can see यहाँ पर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ with increase in price. Here with this segment 5 to 6 प्राइस बढ़ने के साथ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ. अब यहाँ क्या हो रहा है, with increase in price एक्सपेंडिचर फॉल्स. So this portion says ED greater than 1. तो ED greater than 1 का डायग्राम बना नेगेटिवली स्लोप्ड. ED equals to 1 का डायग्राम बना पैरेलल टू Y एक्सिस, पैरेलल टू Y एक्सिस. अगर मैं इस लाइन को देखूं तो कैसा बन रहा है, पैरेलल टू Y एक्सिस. और जब मैं ED लेस देन की बात कर रही हूं तो कैसा बन रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड. इसलिए तीनों को जोड़ के हमने बना दिया टोटल आउटले मेथड. सो दिस इज हाउ वी कैन
have to study about total expenditure method to calculate price elasticity of demand. अब ये calculate कैसे होता है, एक numerical example करेंगे so that it will be clear. So just draw it fast, then we'll go to the example. So here we have an example. You can read the example first. A consumer spent 100 rupees. 100 rupees spend मतलब उसका total expenditure. Total expenditure as 100 rupees when its price is 5 rupees. Price क्या है? 5 rupees है per unit जब वो खर्च कर रहा है 100 रुपए. His expenditure become 126. यानी उसका जो नया expenditure बना वो बना 126 when price become 7. Price कितनी हो गई? 7. You can see here these are the values. ठीक है, तो अब देखो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड वी कैन इजीली फाइंड आउट कि क्या आया है, कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आई है, कौन सी आई, जल्दी सोचो. विथ इंक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, राइट, और विथ डिक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस. तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट पॉजिटिव. कौन सी इलास्टिसिटी हो गई? ईडी लेस देन 1, राइट. हियर यू कैन सी विथ इंक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस. तो विथ इंक्रीज इन प्राइस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस हमने एक्सपेंडिचर मेथड से तुरंत निकाल दी, खत्म हो गई कहानी. बट अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्योंकि 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हो सकता है एक्सपेंडिचर दिया जाए फिर उनसे कहा जाए कि परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट करो. तो परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. इसका मतलब प्राइस तो गिवन है बट क्वांटिटी नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड आउट क्वांटिटी. As I told you, PE means price into quantity. So to calculate original quantity, what we will do? T upon P. तो कितना है? 100 upon 5. So you will get कितना? 20. So your Q will be 20. Same will do for T. For Q1, right? तो Q1 के लिए हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं. I am calculating here. You can see total expenditure new and price 1. नया प्राइस और नया एक्सपेंडिचर. अकॉर्डिंग टू दिस हमारा कितना है? 126 डिवाइडेड बाय 7. तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? दैट यू कैन सी हियर इजीली. 7 1 7, रिमेनिंग इज 5, 56, 7 8 56. सो इस तरह से हमारी Q1 क्या आ गई? 18. अब हम निकालेंगे डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू कैसे निकलता है हमारा? हमने बताया था आपको, Q1 माइनस Q. तो Q1 कितना है? 18 माइनस 20, यू गेट -2. तो -2 वी हैव रिटन हियर. डेल्टा पी निकालेंगे, 7 माइनस 5 इट इज 2 मल्टीप्लाई पी कितना था पहला? 5 और हमारी क्वांटिटी कितनी है पहली? दैट इज 20. ठीक है, तो ये हमने लिख लिया. इससे ये कट गया, 5 1 जा 5 और ये कितने हो गए? 5 4 जा 20. सो योर रिजल्ट इज -1/4. तो क्या निकल के आ जाएगा? माइनस के साथ जो हमारा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव रिलेशन. तो हमने ब्रैकेट में पहले ही पुट कर दिया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो क्या निकल के आया? 4 2 जा 8 and this is. So what you get? ED less than 1. क्या रिजल्ट निकल के आया? ED less than 1, which is also justified according to percentage method. तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड से भी ED less than 1 और परसेंटेज मेथड से भी ED less than 1. बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार निकले. So this is how we can calculate price elasticity for percentage method as well as for total expenditure method using the values. और अगर इसी तरह से ये कांस्टेंट निकल आता, अगर हमें दिखाई देता कि सेम है, तो हम ईडी इक्वल्स टू 1 कहते और यहाँ पर प्रूफ हो जाता तो इट विल बी गुड. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू मेथड. टिल देन, बाय.